जय गुरु जी, जय गुरु जी महाराज, जय गुरु जी संगत जी। आज एक बार फिर हम सब द फ्लावर्स ऑफ ग्रेटिट्यूड बुक की रीडिंग और नरेशन सेशन में इकट्ठे हुए हैं। जैसा कि आपको मालूम है, ये किताब, ये डिवाइन बुक कमलेश मेहता आंटी जी ने बहुत अच्छे तरीके से लिखी हुई है, सुंदर तरीके से लिखी हुई है, जो कि बड़े भाव से हमारी संगत, हमारे सेवादार इसको पढ़ रहे हैं। तो आज की सेशन की जिम्मेदारी नीलिमा मलिक भाटिया आंटी को जाती है। नीलिमा आंटी, ओवर टू यू। सेशन को स्टार्ट करवाएं प्लीज। जय गुरु जी की। जय गुरु जी। अंकल, वॉइस आ रही है मेरी? नीलिमा आंटी, यू आर वेरी मच ऑडिबल। थैंक यू। नमस्ते गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, आज के फिर से इस प्यारे से सेशन के लिए। आपकी वही प्यारी भाव से लिखी हुई डिवाइन बुक द फ्लावर्स ऑफ ग्रेटिट्यूड, सारी संगत का तहे दिल से शुक्राना गुरु जी महाराज द मल्टीलिंगुअल ग्रुप की तरफ से बहुत बहुत स्वागत। और गुरु जी के बहुत बहुत शुक्राना उनकी अनंतम कृपा के लिए कि उनका अब तो बर्थडे मंथ भी चल रहा है, और इस बर्थडे मंथ में आज हम बहुत ही प्यारा सा सत्संग सुनने वाले हैं, और सबके सब एक साथ होकर के गुरु परिवार सारा मिल करके गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेगा। आज जो चैप्टर रीडिंग हो रही है संगत जी, वो रीडिंग सेशन की सेवा गई है सीमा मलिक आंटी जी को, और जो चैप्टर उन्होंने रीड करना है उसका टाइटल है गुरुजी's वे ऑफ हीलिंग। द पेजेस आर 49 to 51. So I would like to invite Seema Malik Aunty ji to please come and start the reading session. Seema Malik Aunty ji. जय गुरु जी। जय गुरु जी जय आंटी। गुरु जी को की संगत को बहुत 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 प्यार भरा सबको जय गुरु जी। गुरु जी नमस्ते। आपकी कृपा, आपकी दया से ये मुझे एक बहुत बहुत डिवाइन अपॉर्चुनिटी मिली है। इतना डिवाइन ये चैप्टर जो कमलेश मेहता आंटी जी ने अपनी बुक फ्लावर्स ऑफ ग्रेटिट्यूड में लिखा है, ये मैंने पिछली बार भी जब मुझे ये सेवा गुरु जी महाराज ने बख्शी थी, तब भी मैंने यही बोला था कि वो उस टाइम मेरी जरूरत थी। आज भी जो ये गुरुजी's वेज ऑफ हीलिंग जो चैप्टर की सेवा मुझे बख्शी है गुरु जी महाराज ने, वो भी आज की डेट में मेरी रिक्वायरमेंट थी, मेरी नीड थी, मेरी सोल को जरूरत थी। सो थैंक यू गुरु जी फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सो मच। संगत जी, आई विल स्टार्ट द चैप्टर Guruji's ways of healing from the very, very divine book, The Flowers of Gratitude by Kamlesh Mehta Aunty ji, pages 49 onwards. Guruji's ways of healing. Although the world is full of suffering, it is also full of the overcoming of it. Helen Keller. These are the words of Helen Keller, which are very aptly defined in this chapter. Guruji was a healer. His mere putting his hands on someone's head could heal a person to the core. His healing tales had traveled far, and people from all over came to get themselves healed from various ailments. This tale is also about one such healing incident we witnessed. His ways of healing were unique. Sangaji, I will continue to read till the end of this chapter and then we'll take it parawise. Meeting the divine Guruji Maharaj was like a spiritual energy entering our soul. It was a soul food. To enter the Guruji Maharaj Darbar in Jalandhar was a soul cleaning experience. It was a medicine
to the ailing soul. Just the act of sitting there looked like all the past life karma was getting washed away by the blessings of divine Guruji Maharaj. We spent a mesmerizing time in Guruji's darbar. Guruji had unique ways of healing people you must have never heard or seen before. To heal, he used to take a spoon in one hand and a fork in another hand. He always took the fork in his left hand and the spoon in the right hand. Then he used to bang the fork and the spoon with each other and saying, Aja. After this, he used to take them to his room. In Guruji's room, he had a bed and a takat posh, with whose help he used to cure people. Guruji made them lick the taksh posh and then remove the spoon on the vertebral column. Sangaji, then on another page, we have a beautiful image. We have got a beautiful Swaroop or Guruji Maharaj. He's looking at our karmas, he's healing his Sangat with his glances, which was very, very well known to the then Sangat. They were used to the glances that he used to give at that time. Much later, when Sangat realized that that glance was meant to heal, was meant for the ailments to be driven away. Coming to page 51, we got heat and beautiful vibrations from the spoon, which he moved on the spinal cord. With the movement of the spoon on the back, the disease used to vanish. I can tell you this with my own experience that cannot be expressed in words. Guruji used to wear a big mala. Guruji used to dip the mala in the big steel glasses with the humming sound of Guruji. After that, each one of us was offered the glass of water in which he made the Amrit Prasad. This glass used to have a very different fragrance in it. This was the way the Sangat used to get the Amrit Prasad. One such day, an uncle came to Guruji Maharaj and said, Guruji, my son drinks a lot of liquor. Please help. Guruji put the mala in a glass of water and offered it to this boy. The boy straight away refused to drink the water. Guruji insisted many times that he should at least smell it. The boy accepted and he smelled it. Then he looked at Guruji and gulped it immediately in one sip. And the problem was solved. क्यों तेनू अपनी विस्की दा स्वाद आया वे? These were the unique and the magical ways of healing Guruji Maharaj used to treat people. He could see these wonders in a moment. And these wonders had the potential to change anyone's life in just seconds. Every step taken in mindfulness brings us one step closer to healing ourselves and the planet. So this chapter ends with this note, and going back to the beginning of this chapter, Guruji was a healer.
Guruji is a healer. Guruji will remain a healer for all his Sangat, for anybody, for anyone on this earth. The word healer, I'm sure Auntie Ji must have written, because only this could come to the mind of we human beings. But the word healer is, I think, a very small word for Guruji. It cannot describe Guruji. He was much more, much beyond that. I will just be sharing my satsang, Sangat Ji, because as I received this message of seva from Guruji Maharaj, in my meditation, I was sitting and Guruji Maharaj was sitting in front of us. Shabad Bani chal rahi thi. And after the Shabads were over, I see Guruji Maharaj, he put his both the hands on his Sangat, sitting on the right and the left hand side. And then I see कि संगत बहुत है, but जो उनका हाथ है वो हाथ बड़ा हो गया, which is covering the heads of so many sangat, which he wanted to heal perhaps. So this was a vision that I had today morning. And only then I could understand that actually why this seva has been given to me. His healing tales had traveled far. At the time when Guruji was there in his physical body, people from all over the world, from all over, और वो कहते हैं ना कि गुरुजी जिनको बुलाते थे वो ही पहुंच पाते थे अपनी हीलिंग के लिए, और उनकी वेज बहुत डिफरेंट थी गुरुजी की. हम आई थिंक संगत ऑलवेज इज अवेयर कि वो स्पून से वो ऑपरेशन थिएटर होता था, ऑपरेशन रूम होता था जहाँ पे गुरुजी उनको हीलिंग देते थे अपनी संगत को, जो भी आता था गुरुजी के पास, जिसको भी गुरुजी की हीलिंग की जरूरत होती थी. मीटिंग द डिवाइन गुरुजी महाराज वाज लाइक अ स्पिरिचुअल एनर्जी. ही इज एन एम्बॉडीमेंट ऑफ स्पिरिचुअल एनर्जी, पावरहाउस he is. And the way we plug in our devices to the main sockets, it is just like having a direct connection with Guruji Maharaj and seeking his energy into our souls. His presence, his connection with the soul is the food for the soul. And I sometimes really feel that why we weren't there when he was there in the physical form, because then whatever Sangat was experiencing, I only wish even I could experience that. But he has always ensured with his divine blessings each and every day. We can feel it. The moment we sit down and we connect to Guruji, we feel that this connection is there and we can feel the healing within our body. It was a medicine to the ailing soul. Sangat ji, abhi last week, pura, there was seva to all the Sangat in our group, in another group, where the Sangat's brother was had suffered a brain stroke, and we were all praying for him. So we were praying for his healing. We were praying for his ailing. And just yesterday only morning, we got the news that he's back from the hospital. And it is just like a dream come true. We couldn't even imagine that he would be early home so soon. But Guruji has healed him. So again, my connection with Guruji for reading this divine chapter on healing.
is very, very clear to me. It looked like all the past life karma was getting washed away by the blessings of the divine Guruji Maharaj. We spent a mesmerizing time in Guruji's Darbar. I can understand. I really feel so. I'm sure Auntie must have felt so nice and so divine, sitting in the blissful company of Guruji Maharaj, under his shelter, under his umbrella, soaking in all the love and the divinity of our Guruji Maharaj into the souls, into her soul. Guruji had unique ways of healing people you must have never heard or seen before. To everyone, we know now that Guruji used to take a spoon in his hand, in one hand, and the fork in another hand. Why he took fork in the left hand and the spoon in the right hand, I would not understand this, but then we don't have to understand. But perhaps any Sevadar Sangat would be able to enlighten us on this aspect also. Then he used to bang the fork and spoon with each other and saying, Aja. After this, he used to take them to his room. वो लेके जाते गुरुजी महाराज उस ऑपरेशन रूम के अंदर. गुरुजी के कमरे के अंदर एक बेड था, तख्तपोश था, जिसको वो यूज करते थे. आई एम श्योर आई एम रीडिंग द करेक्ट वर्ड. संजय जी, प्लीज if I am wrong, just tell me. It is Takatposh, with whose help he used to cure people. Guruji made them lick the Takatposh and then move the spoon on the vertebral column. Spine के ऊपर गुरुजी महाराज स्पून को मूव करते थे और उसकी ब्यूटीफुल वाइब्रेशंस और वहां से जो हीट निकलती थी, जो गर्मी निकलती थी, जो गर्माश निकलती थी, वो पूरी स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर वो टच करते थे विद द मूवमेंट ऑफ द स्पून, उस चम्मच से. तो डिजीज, मुझे लगता है संगत जी, ये जो गुरुजी महाराज ये स्पून भी जो ये यूज करते, जो ये फॉर्क भी यूज करते थे, ये भी सिर्फ एक हमारे लिए दिखाने के लिए कि यस ही इज डूइंग समथिंग. एक्चुअली में गुरुजी महाराज को वो भी जरूरत नहीं थी. उनकी तो अपनी एक नजर से वो डिजीज, वो रोग, वो कष्ट वैसे खत्म हो जाते थे और हो जाते हैं. आई कैन टेल यू दिस विद माई ओन एक्सपीरियंस, जैसे कि कमलेश आंटी जी बताती हैं, दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स. गुरुजी यूज्ड टू वेयर अ बिग माला. Guruji used to dip the mala in the big steel glass with the humming sound of Guruji. गुरुजी, संगत जी, ये जो गुरुजी महाराज की माला जो पहनते थे, बहुत बड़ी माला पहनते थे और उसको वो डिप करते थे स्टील ग्लासेस के अंदर, उसको ब्लेस करके और कुछ प्रेयर्स पढ़ के और फिर वो ऑफर करते थे संगत को, जो क्योंकि वो अमृत प्रसाद बन जाता था. संगत जी, एक इसके ऊपर भी मेरा एक छोटा सा मैं सत्संग शेयर करना चाहती हूँ. लास्ट ईयर की बात है, इनफैक्ट इसी साल की बात है, अर्ली दिस ईयर. मैं मेडिटेशन में बैठी हुई थी, सत्संग में बैठी हुई थी मैं, और मेरा कनेक्शन लगा और मैंने क्या देखा कि गुरुजी महाराज अपने आसन में बैठे हुए हैं, गद्दी पे बैठे हुए हैं, और साथ में उनके बहुत सारी रुद्राक्ष की माला पड़ी हुई है, बहुत सारी है. एंड वो उनमें से रुद्राक्ष की एक माला निकालते हैं और वो मुझे देते हैं और वो मुझे कहते हैं कि अपने बच्चे को पहना दे, बेटे का नाम लेके तो उसको पहना दे. और मैं कहती हूँ गुरुजी महाराज, मैं तो उसको नहीं पहना सकती क्योंकि वो नहीं पहनेगा, और मैं रख लेती हूँ, लेकिन मैं उनको ये भी कह देती हूँ कि गुरुजी मैं नहीं पहना सकूंगी, मेरी हिम्मत नहीं है, अब आप देख लेना. तो संगत जी, अभी लास्ट मंथ की बात है कि बेटे को बाहर एक शॉर्ट वेकेशन के लिए जाना था, तो उसने अपने आप ही ये डेस्टिनेशन चूज किया, नेपाल, काठमांडू जाने का. वहां पे जाने का उसने वो क्यों चूज किया ये मैं समझ सकती हूँ, संगत जी समझ सकती हैं,
कि क्योंकि मुझे लगा कि यस गुरुजी महाराज उनको वहां पे बुला के वो ब्लेस कर लेंगे। वो कभी टेम्पल्स में नहीं जाता, लेकिन वो वहां पे गया, और वहां पे जब वो टेम्पल में गया तो वहां पे उसको एक पंडित जी अंदर लेकर गए, और वहां पे शिवलिंग में से बहुत बड़ी माला, रुद्राक्ष की, मोटी रुद्राक्ष की माला थी, और उन्होंने पंडित जी ने बेटे को पहना दी। तो ये जो मेरे भाव थे, जो गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया, क्योंकि मुझे तो ये पता ही नहीं था, संजय जी हम नहीं जान सकते, ये गुरुजी महाराज जानते हैं। उसने कैसे पंडित जी वो कैसे वहां पहुंचा, और कैसे वो यहाँ शिव नगरी पहुंचा, कैसे वो पंडित जी ने उसके गले में अचानक से माला डाल दी और वो पहनकर आया। आने के बाद चाहे उसने वो माला मुझे वापस कर दी और मैंने अभी भी संभाल के रखी हुई है, बट थ्रू आउट द जर्नी he did not remove that mala, he wore that mala, and this is another way of healing. So my connection again with this chapter is really mind blowing, and I am feel so blessed कि गुरुजी महाराज हमारी हर छोटी से छोटी कष्ट को, परेशानी को समझते हैं और वो खुद ही हमें हील करते हैं। This glass used to have a very different fragrance in it, क्योंकि वो अमृत प्रसाद बन जाता है। This was the way the Sangat used to get Amrit Prasad. On one such day, an uncle came to Guruji Maharaj and said, Guruji, my son drinks a lot of liquor. ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क अगर हम आज के युग में देखें तो आज की यंग जनरेशन है बहुत इससे ज्यादा प्रभावित है। तो फिर भी उनको कैसे किस तरीके से गुरुजी महाराज ने इसको ब्लेस किया कि वही माला ग्लास में डाल के जब उसको ऑफर की गई तो नेचुरली है वो कोई भी बच्चा उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। जैसे मुझे लगा कि मेरा बेटा नहीं पहनेगा माला, वो उसने नहीं पहनी, लेकिन गुरुजी महाराज न्यू, उनको मालूम है कैसे उन्होंने ये करना है, कैसे उन्होंने ब्लेसिंग्स देनी है, पहुंचानी है। क्यों कहते हैं ना कि घर का एक भी अगर फैमिली मेंबर आ जाता है गुरुजी महाराज के पास तो पूरी फैमिली को गुरुजी महाराज ब्लेस कर देते हैं। फिर वो कोई माने गुरुजी को या नहीं माने उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इस तरीके से उस बच्चे को उसने जब वो स्मेल किया ग्लास को तो आई एम श्योर उसको वही स्मेल आई होगी जो लिकर की जो वो पीता था, और बस वो उसके लिए हीलिंग थी। किस तरीके से, इतने यूनिक तरीके से, he always look for unique ways to heal. He brought himself down to our level for us. This shows how much he has love for his Sangat. Thank you, Shukrana, Guruji Maharaj. My heart, the Sangat's heart is full of gratitude for you. क्यों तेनू अपनी विस्की दा स्वाद आया वे? And I'm sure that would have been the last day when that boy had his liquor, his drinks, he would have left it permanently. Guruji has healed him forever. So these were the unique and the magical ways of healing Guruji Maharaj used to treat people. He could see these wonders in a moment. And these wonders had the potential to transform, to bring great transformation in a human being, in his Sangat. Guruji devised several unique methods to heal us. Thank you, Guruji. Shukrana, Guruji. This is the end of the chapter, and the last sentence, every step taken in mindfulness. जब हम सोच के अपने आप को सरेंडर करते हैं, चाहे हम वो लॉ ऑफ रिट्रैक्शन हो, चाहे वो कुछ भी हो, जब हम गुरुजी महाराज पे हर चीज छोड़ देते हैं तब हमारी सोल पूरी तरीके से हील हो जाती है, for this lives and for all lives to come. Jai Guruji, Shukrana Guruji. I end my seva over here.
शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। शुक्राना सीमा आंटी। थैंक यू आंटी। जय गुरुजी। शुक्राना। Beautiful explanation of once again the chapter of the divine book, The Flowers of Gratitude. आज जो वही है कि कोइंसिडेंस नहीं कहेंगे। आज हम सबको पता है कि आज जब सेशन शुरू हुआ तो सेशन शुरू हुआ था हीलिंग पार्ट से। एंड सी, आज के चैप्टर का टाइटल इज अगेन गुरुजी's वे ऑफ हीलिंग। सो व्हाट अ ब्यूटीफुल कनेक्शन गुरुजी कि चैप्टर का नाम भी गुरुजी's वे ऑफ हीलिंग एंड सेशन की शुरुआत होती है हीलिंग पार्ट से। और जब हम सेशन स्टार्ट करके देखते हैं तो हमें लगता है कि ये क्या हो गया, आज तो हीलिंग पार्ट चल रहा है और ये नहीं पता कि गुरुजी की अपनी मर्जी थी। सुरेश अंकल। जय गुरुजी की। जय गुरुजी अंकल। आज तक का रिकॉर्ड है कि जब से हीलिंग पार्ट स्टार्ट हुआ है तब से हीलिंग पार्ट सिर्फ मॉर्निंग आवर्स में ही होता है। अगर सपोज दिन में मैंने भी कभी नहीं रात को सुना। अगर दिन में सपोज कोई सेशन हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं तो उस केस में हीलिंग पार्ट आइदर इट इज पोस्टपोन्ड फॉर द नेक्स्ट डे और इट इज डन बिटवीन 4 to 6 PM, दैट्स ऑल। इट वाज नेवर डन around 8 o'clock. So anyways, आज गुरुजी ने अपना ही it was Guruji's will, Guruji's इच्छा कि आज हीलिंग पार्ट से इसको सुने और स्टार्ट करें। जी, such a beautiful connection in that. बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है सीमा मलिक आंटी, आपने सारे कनेक्शंस दिए हैं, सब जो कोरिलेट किया है डिफरेंट एस्पेक्ट्स को, वेरी ब्यूटीफुल डन, ब्लिसफुली डन। जय गुरुजी। ओवर टू यू नीलिमा आंटी। जी अंकल, थैंक यू अंकल। जो आज के टेक्स्ट थे चैप्टर से, हमें सबको ही पता है कि गुरुजी का एक अपना ही अलग तरीका है। वो एक लाइन है ना हमारे प्यारे से जनरल कपूर अंकल की, गुरुजी की अजीबोगरीब दुनिया। उनके तरीके भी बिल्कुल निराले, उनकी तरह खुद ही निराले हैं इतने कि उनका हर तरीका ही इतना निराला, इतना प्यारा है, इतना जादू भरा है। चाहे मैं अगर शुरुआत करूं तो उनकी आंखों से अगर मैं शुरुआत करूं तो जादू भरी उनकी आंखें, जो एक बार ही देख लेता है उनका हो जाता है। उसके बाद आए तो उनकी मुस्कान, इतनी मंद मंद मुस्कान, उनकी आंखों से वो उनका तिरछा देखना, किसी भी कोने में बैठ जाओ, कहीं से भी देख लो गुरुजी के स्वरूप को, वो सीधा ही लगता है कि ये तीरे नजर तो सीधा यहीं आ रही है और कहीं जा ही नहीं रही है। वो मुस्कान कब आपका दिल चुरा के ले जाती है और कब आपकी आंखों में से वो दुख भरे आंसुओं को हटा देती है, कब आपकी लाइफ के अंदर में एक नई एनर्जी भर जाती है, एक नई पॉजिटिविटी दे जाती है, हमें पता ही नहीं चलता। साथ साथ आगे बढ़े तो गुरुजी की प्यारी सी फ्रेग्रेंस, जिसके सत्संग हमने कितनी बार सत्संग सुने हैं, हर संगत से। नया पुराना नहीं कहूंगी क्योंकि नया पुराना गुरुजी ने कभी नहीं माना, तो उन्हीं की बात को मानते हुए कि हमने कितनी बार उनकी फ्रेग्रेंस के भी सत्संग सुने हैं कि गुरुजी के हर हिस्से से, उनके चोले से, हर एक चीज से उनकी उनकी वो प्यारी सी खुशबू आती थी जो बहुत ही मेस्मराइजिंग होती थी और जो एक बिल्कुल एक उनकी वही अजीबोगरीब दुनिया की तरफ ले जाती थी। उनके होने से स्वर्गलोक का एहसास होना, उनके होने से, उनके वहां पे बैठ करके उनके सामने शब्द सुनने से ही एक अलग दुनिया में पहुंच जाना, ये सारे के सारे निराले तरीके हीलिंग के गुरुजी के कितने हमने सुने। और सुनते सुनते कितनी बारी, आई एम श्योर, आई एम 100% श्योर, हम सब उस जर्नी पे चले गए कि हम कब छोटा मंदिर पहुंच गए, कब हमने वो एज्यूम कर लिया अपनी आंखों के आगे, इमेजिनेशन आ गई पूरी की पूरी कि गुरुजी बैठे हैं साइड टेबल के पास में, जो कैबिनेट है जो किचन के बाहर है, उस पर गुरुजी बैठे हैं अपने शूज में, अपनी टी शर्ट में, और कभी अपने स्नीकर्स के साथ में, तो या कभी अपनी शॉर्ट्स के साथ में, या अपनी पैंट्स के साथ में, ट्राउजर्स में। और फिर वो जब चोले के लिए जाते हैं अपना चेंज करने के लिए, मतलब वो सारी इमेजिनेशन होते हुए भी एक कितनी अलग तरीके की हीलिंग हो जाती है। हीलिंग डजंट ओनली मीन लाइक मेडिकेशंस,
It means taking you away from all your worries or all from your unpleasantness in the life, or taking you to a different journey altogether where you and he is only there. Nothing Very, very, else is there. That is very, the very. healing path. That is the Guruji's way of healing. Healing doesn't only allow me to say that, yes, I was suffering from this, I was suffering from that, I was having this kind of misfortunes in my life. That only doesn't mean healing. According to me, healing means coming out of your ways, going to that particular journey. That doesn't mean कि मैं meditation में ही बैठूं. That doesn't mean कि मैं सिर्फ ध्यान में जाकर के ही बैठूंगी तो मेरी वो healing start होगी. No. एक बारी उनको वो प्यार से देख लेना, उनका तीरे नजर ले लेना ही मेरे लिए तो हीलिंग है. सबसे बड़ी एक वो हीलिंग है कि बैठे बैठे चेहरे पर एक हमारे मुस्कान आ जाए और हम गुरुजी को देख के बोले, वाह गुरुजी, वी लव यू जय गुरुजी. गुरु जी, एक जय जप्पी गुरु पालो जी, जय गुरुजी. गुरु जी. नीलिमा आंटी जय बहुत गुरुजी ब्यूटीफुली अंकल. अटेंड किए हैं. आंटी, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, सीमा कुमार आंटी जी को भी इनवाइट करिएगा. लेट अस हियर हर व्हाट आर श्योर अंकल. her views about these healing aspects. Jai Guruji. Sure, uncle. Sure, uncle. I'll just take a minute more and then we will be calling upon and inviting Seema Kumar Aunty ji for the beautiful explanation. आगे हमने जैसे सुना कि गुरुजी कैसे डिफरेंट एलिमेंट्स को कंप्लीट दूर करने के लिए अपने ऊपर कितने ले लेते थे ना प्रॉब्लम्स को. कभी हरी मिर्ची से बुखार को हटा देते थे, तो कभी पान के पत्तों से इलाज कर देते थे, कभी अभी जैसे हमने सत्संग में ही सुना कि फोक और स्पून से एक्सरे हो जाता था. कैसे वो गुरुजी सारी एलिमेंट्स लेते थे. हमने पंकज गौतम अंकल के भी सत्संग में सुना कि जब उन्होंने उनके पापा के लिए भी उनके कष्टों को दूर किया तो उन्होंने गुरुजी को गुरुजी ने दिखाया उनको कि कैसे मैं अपने ऊपर उन कष्टों को लेता हूँ. सो दिस इज हिज वे ऑफ हीलिंग. कौन करता है आजकल? कोई भी नहीं करता. सो शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी. अमृत प्रसाद वाला जल का रुद्राक्ष माला वाला वो वीडियो गुरुजी का कितना सुंदर है. प्यारी सी हिमाचली टोपी में गुरुजी सबको वो रुद्राक्ष वाला जल प्रसाद दे रहे थे. कितने प्यारे और कितना सुंदर तरीका, कितना निराला सा, सब कुछ प्रैक्टिकली होते हुए दिखाते हुए गुरुजी ने सबको हील कर दिया. और फिर जैसे हमने तनुज कपूर आंटी के भी सत्संग में सुना था कि गुरुजी वो हमिंग साउंड निकालते थे जब भी वो रुद्राक्ष की माला को डिप करते थे. सो सच अ ब्यूटीफुल 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 इमेजिनेशन कम्स आउट टू इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ अस व्हाइल वी लिसन टू द सत्संग्स ऑफ गुरुजी. अगेन उनकी अजीबोगरीब दुनिया और उनके अजीबोगरीब तरीके हम सबको हील करने के. so thankful गुरुजी, so thankful बलिहारी इस जीवन के गुरुजी, जब आप आ गए और आपने ये निराला तरीका दिखा दिया. Not wasting more time and not getting into more, I will call Seema Kumar Aunty ji to please carry on this journey of Guruji's way of healing. Seema Kumar Aunty ji. Yes. Jai Guruji, जय गुरुजी अंकल, जय गुरुजी, नीलिमा आंटी, सब संगत को जो सुन रहे हैं और सुनेंगे. और ये हमारा सेशन चल रहा है. आज जब मैंने भी लॉग इन करा तो दुख भंजनी साहब पाठ चल रहा था. सो आई वाज लिटिल सरप्राइज कि मैंने गलत लॉग इन तो नहीं कर लिया, क्योंकि अब मैं ये दुख भंजनी के ऊपर एक दो लाइनें बोलना चाहती हूँ कि दुख भंजनी साहिब पाठ आज से 2 साल पहले जब पेंडेमिक शुरू हुआ है तो गुरुजी ने मेरे को एक थॉट दिया कि आप तुम पाठ पढ़ो, कुछ सीखो. आप देखिए संगत जी, मैंने ये दुख भंजनी साहिब का पाठ निकाला और मैंने ये रियलाइज किया कि ये पाठ जो था ये पेंडेमिक में गुरु अर्जन देव जी ने लिखा था. और इस पाठ में इतनी पावर्स हैं कि वो पाठ में क्या बोलता है कि हमें ताप ना आए, रामचंद्र की लष्टिका लाठी उसको भगा दे. और यही दुख भंजनी पाठ ने हम सबको ये 2 साल में निकाला है और ये पाठ सब अब प्लेटफॉर्म्स में चल रहे हैं. और तो ये मेरा टेक था. बल्कि जब मैंने शुरू किया तो बहुत लोगों ने मुझे दुख भंजनी साहिब आंटी के नाम से बोलना शुरू किया, क्योंकि आई स्प्रेड द मैसेज ऑफ दिस पार्ट because I discovered my it was very divine part for me, and it helped me in curing me mentally and physically. बहुत इस पार्ट ने मुझे स्ट्रेंथ दी. इसमें जो शब्द आते हैं उन शब्दों ने मुझे बहुत स्ट्रेंथ दी. जैसे इस पार्ट में थिर कर बैसो हरजन प्यारे आता है और ताती वायु न लागे, ये दोनों जो शब्द हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए. तो ये दुख भंजनी साहब पाठ के ऊपर था. और आज जो आंटी ने पढ़ा, और कमलेश मेहता आंटी हमेशा 1-2 लाइन की स्टेटमेंट से शुरू करती हैं किसी की
कोट से और एंड करती है, तो आई विल टॉक ऑन दैट, बिकॉज जो गुरुजी ने हम सबको क्योर कर रहे हैं, जिनको अपने जब वो अपने शरीर में थे तब भी उन्होंने किया, और आज वो नहीं है तब भी हम सबको क्योर कर रहे हैं। और उन्होंने मुझे बहुत बार मेरे को जिंदगी बख्शी है, और उन्होंने मुझे साक्षात करके दिखाया है कि उन्होंने मुझे कैसे बचाया, और मेरे 90% उन्होंने मेरे कर्म लिए हैं, और मुझे 10% की सिर्फ सफरिंग दी है। संगत जी, लास्ट 2 years में ही हैज सेव्ड माय लाइफ मेनी टाइम्स, and he's given me darshan of Kal Bhairav and my funeral to tell me that I have saved you, and I've gone through 2 surgeries in last 1 year, but Guruji held my hand and saved me with giving me only 10% pain, and 90% he took it, and he made me understand ki I am there with you, and he is there to mitigate, to reduce our sufferings of every sangat. So in this chapter they start, auntie ne Helen Keller ka ye quote diya hai ki although the world is full of suffering, it is also full of overcoming it. तो मैं ये थोड़ा पहले इंग्लिश में बोलूंगी, मैंने लिखा है, उसके बाद मैं हिंदी में भी ट्रांसलेट करूंगी। तो ये जो हेलन केलर की स्टेटमेंट है, इसके ऊपर मेरा टेक है कि our sufferings depend on our past karmas. As Lord Krishna said, those who meditate on me loses the effects of his past bad actions. And when we put our faith in Guruji, he never lets us down. He never lets us perish. He is able to minimize our mental and physical sufferings. He many times took sufferings on his body and also gave a portion of his bodily wealth to lighten our misery. Only great gurus can take karmas of his devotees. तो हमको क्या करना है? Seek the kingdom of God and his righteousness, and Guruji's blessings will flow from his life. Pray to Guruji to give us strength, wisdom to overcome these sufferings. Sufferings हमारी लाइफ का पार्ट है, एंड हमको गुरुजी से अरदास करनी है कि आप हमें शक्ति दीजिए, ज्ञान दीजिए, हिम्मत दीजिए कि हम ये सफरिंग्स को सह सकें, और आप pray to him to go through this phase with strength. Guruji always comes when we need him and always undo our sufferings. And how we can reduce our sufferings is by meditation, prayer, seva, simran, and willpower. Our sufferings can be minimized or nullified. तो इसका क्या मतलब है कि और जब हमारी सफरिंग्स होती है तो गुरुजी हमारे साथ ज्यादा होते हैं। जैसे आज अंकल ने सुबह एक सत्संग में बोला था कि गुरुजी के हम गोदी में बैठ के अपने कष्टों को वो हमारे पार लगाते हैं। तो जो हमारे कष्ट है ये हमारे पिछले कर्मों पर निर्भर होते हैं। जैसे कि भगवान कृष्ण ने कहा था, जो लोग मेरा ध्यान करते हैं वे अपने अतीत के प्रभावों को कम कर सकते हैं। जब हम गुरु जी पर विश्वास करते हैं वे हमें कभी नष्ट नहीं होने देते, वे हमारे मानसिक और शारीरिक कष्टों को कम करते हैं। और हमने सब ने देखा कि उन्होंने कितने अपने शरीर के ऊपर हमारी बीमारियां ली और सफर किया, और उन्होंने इतनी बॉडीली पेन ली और उसको पार्ट से उनको मिनिमाइज अपनी बॉडी को कम किया। और जब वो अपने उसमें चोले में थे, और आज भी हमारे बिना चोले में रहते हुए हम सब की वो सफरिंग ले रहे हैं। और हमें अब भगवान से, गुरु जी से ये अरदास करनी है कि आप हमें इतनी शक्ति दीजिए कि जो हमारी लाइफ में सफरिंग्स आती हैं उसको हम प्रेयर से, सेवा से, सिमरन से कम कर सकें। हम एटलीस्ट प्रयास करें कि हम अपने इन सफरिंग्स को कम कर पाए। और आंटी ने इस बुक में एंड करा है कि love of God flowers on those who are responsive to others' pains and sufferings. उन्होंने बोला कि every step taken in mindfulness brings us one step closer to healing ourselves and the planet. तो हमें क्या करना है, जो दूसरों की पीड़ा और कष्टों को महसूस करते हैं उन पर ईश्वर का हमेशा प्रेम मिलता है, उसको भगवान का हमेशा प्रेम मिलता है। कि हम जब अपने आप सफरिंग में होते हैं तो हमको दूसरों की सफरिंग भी समझ आती है कि जो हम देन वी स्टार्ट फीलिंग फॉर द अदर्स पेन। और ये हमें ये सोचें कि हमारे कष्ट कम हो जाएंगे, और ये विचार हमें मजबूत करते हैं। जब हम सोचते हैं कि गुरु जी हमारे साथ हैं, हमारे कष्ट कम होंगे
और जैसे हम सोचते हैं ऐसा हमारे साथ होता है, बिकॉज गुरुजी गिव्स अस पॉजिटिव थॉट्स कि आपकी जो सफरिंग्स हैं वो, और ये हम सबकी सफरिंग्स हैं, अगर हम ये सोचते हैं कि गुरुजी हमारे साथ हैं, तो हमारे गुरुजी और ये कि 90% हमारी सफरिंग ले लेते हैं, तो ही गिव्स अस स्ट्रेंथ टू बेयर दिस 10%, एंड ही स्प्रेड्स दिस सफरिंग इन फेस्ड मैनर, जो हमको महसूस भी नहीं होने देता। तो आप देखिए कि ये इतनी बड़ी डिविनिटी के हम चरण शरण में हैं। और संगत जी, अब मेरा ये हाल हो गया कि मैं कल बड़े मंदिर गई थी, तो मुझे वहां की धरती पे पैर रखने में भी डर लगता है कि एक इतनी बड़ी शक्ति के हम द्वार पे पहुंचे हैं, क्या हम इस लायक हैं? और हमने कितनी जो गलतियां करी हैं, हमें उसकी माफी गुरुजी से मांगनी है कि आपने हमारा हाथ थामा है, और हमको इतनी दुनिया में इतने लोगों के बीच में आपने हमको अपने चरण शरण में लिया है। तो ये गुरु जी का लाख लाख शुक्राना है। माय फ्लावर्स ऑफ ग्रेटिट्यूड टू आवर गुरु जी महाराज, क्योंकि आज आप लोगों ने बर्थडे का सेलिब्रेट किया और बहुत ही डिवाइन सत्संग थे, और जो आज हमने सुने, तो दिस वाज माय टेक ऑन टुडेज चैप्टर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। Shukrana Guruji. Thank you, Seema Kumar Aunty ji, for the wonderful explanation as always. Now I would like to hand it over to Suresh Uncle. जय गुरु जी की। Jai थैंक यू Guruji लॉर्ड Uncle. सीमा कुमार आंटी, थैंक यू लॉर्ड सीमा कुमार आंटी जी, बहुत सुंदर तरीके से आपने अपने भाव बताए। बाकी ये सब गुरु जी की कृपा है। गुरु जी की कृपा इतनी ज्यादा है, आप मानेंगे नहीं सीमा कुमार आंटी जी की, जो ओट संगत के सत्संग हैं, अगस्त एंड तक के हमारे सत्संग पाइल्ड अप हैं सब ओट संगत के। मतलब मेरे को हर रोज 2-3 रिक्वेस्ट आ जाती हैं कि अंकल वो नेक्स्ट मंथ का स्लॉट हमको दे सकते हैं, ऐसे करके। तो बहुत कृपा है। मैं सब संगतों से चाहूँगा कि जो न्यू संगत भी है वो भी अपने अपने अगर संगत शेयर करना चाहें तो शेयर कर सकते हैं, मेरे को मैसेज कर सकते हैं। वी मे रिव्यू एंड कंसीडर प्लीज। संगत तो सब एक ही है, नई हो या पुरानी हो, और बस गुरु जी की कृपा रहनी चाहिए। और सीमा मलिक आंटी जी, मल्टीलिंगुअल जूम प्लेटफॉर्म की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू यू नीलिमा आंटी, गुरु जी से महाराज से आज्ञा लेने के लिए। जय गुरु जी। जय गुरुजी। सारी संगत से हाथ जोड़ के बहुत बहुत शुक्राना, और ये रिक्वेस्ट कि आप सब अनम्यूट करके गुरुजी से आज्ञा ले सकते हैं प्लीज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना वास्तव अंकल। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु जी, आज्ञा गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना हर पल का अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी महाराज। लव यू गुरु जी, लव यू। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संग सहाय रहो गुरु जी।